Hello students, good morning. In last video we did the exercise 13.2 till question number 3, and today we are going to do the question 4 onward. So the question number 4 is the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of playground in meters square. So first of all, we have to understand the question. Question is what? There is a playground. Let us suppose this is the given playground, and we have to use one roller that is cylindrical roller. Let us suppose this one is the roller, and we are using this roller to roll this playground. So what is the dimensions of roller is given. The diameter of roller is 84, means this is the diameter is given 84 meter, and the length means this is the length of roller. So we can say this is the length of roller, and length of roller, that is, we can consider height h is equals to 120 meter. Now what we have to do, this roller, especially whenever roads are under construction, then might be you have seen some roller to level the soil on the soil or concrete or cement concrete, whatever, to roll on the road. So this type a playground is given, and we have to roll the soil on this ground to make smooth, to play something on it. So we are using this type roller, and this roller is moving on this playground 500 complete revolution to roll this. So what we have to do, how much area we will be roll in 500 revolution. So first, if roller is complete one revolution, then it will be equals to the, in one complete revolution, whatever the distance covered by roller, that will be the total curved surface area of cylinder. So what we have given, first of all, the diameter meter of roller, that is D is equals to 84 meter. So radii of roller, that is R will be equals to 84 by 2 meter, that is equals to 42 meter is the radius of that roller, and the height of roller, because why I am writing here height, because length is given, that is the length from one end to another end is given 120 meter. So if we put the roller in vertical form, then it will be considered as the height of roller. So height of roller is given 120 meter. Now the curved surface area of roller will be equals to curved surface area of roller cylindrical 2 pi r h. This is the curved surface area. So 2 into 22 by 7 into r is your 42 meter into height is 120 meter. So this area will be total meter square. Now we have to calculate this portion. 2 pi 22 r is 42, because diameter was given 84, so half of diameter will be radius, and height is
120. So this 42 will be cancelled out by 6 7 ja 42. Now you have to simply multiply. So 2 into 22 44 into 6 into 120 meter square. So if we multiply 6 4 ja 24 2 6 for 24 and 2 26 into 120 meter square. Again we can multiply by 12, putting 0 here. So 12 4 ja 48, 8 carry 4, 12 6 ja 72 and 4, 72 and 4 76, 6 carry 7, 12 2 ja 24 and 7 29 meter square. So this is the total surface area of this 24 and 7 31. So 31,680 meter square. So this is the area of roller to cover in one complete revolution. Now roller is making total 500 complete revolution. So total area, next लिखिए, so the area of filled will be equals to curved surface area of roller into 500 complete revolution. So in one complete revolution it is covering 31,680 meter square into 500. So again we have to multiply by 500 this quantity. So 10 and 20. So 500 से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 30. नाउ 5 से 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 and 4 34 कैरी 3, 5 and 3 8 and 5 3 जा 15. So 1584 4 times 0 meter square. This will be the total area of the field. So the unit was given in centimeter. Initially this was the centimeter, this was also centimeter. So centimeter square, ये भी centimeter square हो जाएगा. Now इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? Because 1 meter square is equals to 100 into 100 centimeter square. So ये आपका यूनिट को लार्ज क्वांटिटी टू स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल टू लार्ज कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर 1584 टाइम्स 0 को अगर मैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो फाइनली आंसर इज योर 1584 मीटर स्क्वायर. दिस इज द area of that playground. So hope you understand this question. Please pause the video and note down. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रीड आउट करें क्वेश्चन को, रीड आउट करके अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंसली रीड आउट करें और उसको अंडरस्टैंड करें. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5, a cylindrical pillar is a cylindrical pillar. एक कोई पिलर है, जैसे अपन जनरली स्कूल में, हाउस में, बिल्डिंग्स में देखते हैं कि जो रूफ है उसका कुछ एरिया जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है और उसको वहां स्टेबल रखने के लिए अपन पिलर लगाते हैं. तो ऐसा ही कोई एक सिलेंड्रिकल पिलर है. लेट अस सपोज ये एक सिलेंड्रिकल पिलर है. सिलेंड्रिकल का मतलब ये वाला जो एरिया है ये कर्व्ड सरफेस है, टॉप और बॉटम इसके दोनों सर्कुलर फॉर्म. तो ये कोई वर्टिकल सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर. डायमीटर का मतलब दोनों का आउटर टू आउटर जो डिस्टेंस होती है, ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर है. सो अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब अगर अपने को d दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? d/2, दैट इज 50/2, 25 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई. सेकेंड दे रखा है
एंड 3.5 मीटर इन हाइट। देखो ये जो है इसकी जो हाइट है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी हाइट है। हाइट को जनरली अपन किससे लिखते हैं, h से। h दे रखा है 3.5 मीटर। अब सबसे पहले जो इसकी डायमेंशंस थी कि रेडियस आपका 25 सेंटीमीटर है और डायमीटर 3.5 मीटर है, तो ये सेंटीमीटर में ये मीटर दोनों यूनिट जो हैं whether it should be in meter or whether it should be in सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे कि 3.5 मीटर रखा और इसको अपन क्या करेंगे, इस 25 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप दोनों डायमेंशंस, आपकी हाइट भी मीटर में है और उसका रेडियस भी मीटर में। Then find the cost of painting the curved surface of the pillar। इस पिलर पर हम क्या कर रहे हैं, इस पे कलर करना चाह रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना और जो पेंटिंग करेंगे इस पिलर पर उसकी कॉस्टिंग आ रही है 1 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पेंटिंग ये केवल समझने के लिए लिख रहा हूं। पर मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट और रेट कितना दे रखा है, ₹12.50। अब देखिए तो अपने को कुल मिला के क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका रेडियस कितना है, हाइट कितना है, और इस पिलर पर जो हम पेंटिंग कर रहे हैं उस पेंटिंग का पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹12.50 है। तो टोटल कॉस्टिंग कितना होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है आपको, इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक ज्योमेट्रिकल स्केच बनाना है और व्हाटएवर गिवन दैट यू हैव टू राइट एंड अंडरस्टैंड। नाउ गिवन क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका रेडियस आपको लिखना है। रेडियस कितना है वो आपने कन्वर्ट कर दिया था 0.25 मीटर। देन सेकंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज h इज इक्वल टू कितना है 3.5 मीटर। ओके, so the curved surface area of cylindrical pillar is equals to 2 pi r h unit square, so it will be 2 into 22/7। r कितना है आपका, रेडियस 0.25 into हाइट इज 3.5 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यूनिट ध्यान से लिखना है आपको। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बाय मिस्टेक सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था, है ना, बाद में फिर कन्वर्ट किया। तो फिर फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में था जिसको अपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हाइट मीटर में है। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो दोनों डायमेंशंस है वो आपकी सेम यूनिट में होनी चाहिए। सो हमें एरर नहीं करना है, ओके, क्योंकि अब यहाँ तो कर लेंगे लेकिन एग्जाम में अगर आप एरर करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नाउ सी, इसको हमें कैलकुलेट करना है और विदाउट कैलकुलेटर यूज लेके कैलकुलेट करना। देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 2 0, एक पॉइंट हटाएंगे, 1 0। अब ये 35 हो गया, 7 से 35 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 into 22 ये 44 हो गया और 25 into 5 125 एंड डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 1 0, ये आपका 1 के बाद 3 0। अब न्यूमरेटर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर राइट में 3 0 छोड़ करके अपन पॉइंट लगा देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में है। आप देखिए 44 into 125 को, तो जब एग्जाम में आप इस प्रकार का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको कॉपी के बैक में नहीं करना है, जिस पेज पे सोल्व कर रहे हो। लेट अस सपोज आपका एग्जाम नोटबुक का ये जैसे पेज है जिस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ये आपकी मार्जिन लाइन है, तो राइट हैंड साइड में एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करके लेट अस सपोज क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, यही आपको ये मल्टीप्लाई वाला कैलकुलेशन करना है। सो जैसे अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना करना है
125 को 44 से मल्टीप्लाई करना। फ्रंट में करने का भी मैं एक रीजन बता रहा हूँ कि अगर जैसे यहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमने कैलकुलेट किया कि 125 को 4 से, वैसे थोड़ा सा दिमाग भी लगा के करें कि 125 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखो 25 को 4 से तो 100 और 4 को 1 से तो 400, 400 100 500 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 4 2 जा 8 एंड 2 10 1 कैरी 1 4 एंड 5, सीधा दिख रहा है 125 को 4 से तो 500 आएगा। फिर क्रॉस लगाना, फिर 0 0 500 तो 0 0 5 5, ये 5500 आपका आ गया। तो इसको क्या करना है, यहाँ सोल्व करके सीधा यहाँ लिखना है। तो अगर आपने बाय द वे कॉपी करने में कहीं एरर भी कर दिया तो एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चे ने सही सोल्व किया है। तो ये हो गया आपका 5500 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 55 अपॉन 10 दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पिलर आया। अब इस पिलर पर अपने को क्या करना है बेटे, कलर करना है। और कलर की कॉस्ट क्या दे रही थी पेंटिंग की 1 मीटर स्क्वायर पे 12.5 रुपए, दैट इज 12 रुपीस 50 पैसा। तो 5.5 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन, मैं नेक्स्ट करता हूं। सो नाउ द cost of painting 1 meter square is equals to rupees 12.50. So the cost of 5.5 meter square will be rupees 12.50 into 5.5. अगेन देखिए 12.50 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां से देखो क्या करेंगे 12.50 इंटू 5.5 रुपी जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओ, 1 के बाद 2 जीरो, 1 पॉइंट हटाया 1 जीरो फिर से आ गया। अब देखो 1250 में से 1 जीरो तो आपका कट जाएगा, 125 को फिर 5.55 से मल्टीप्लाई करना, तो फाइनली 125 इंटू 55 अपॉन 100 ये रुपी जाएगा। इसका कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, 125 को 55 से, तो 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 इंटू 12 का 2 कैरी 1 5 पर 1 6 625 फिर 5 से, तो देखो 5 2 6 8 कर लीजिए 5 7 8 एंड 6, तो ये हो गया आपका 6875 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 68.75 rupees. So this is the total cost of painting on this cylindrical pillar. So please pause the video now. That's a very important question. Now next question is question number 6. Again read the question very carefully. सबसे पहले हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको रीड आउट करना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्या है, फर्स्ट 15 मिनट केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है। बड़े से बड़े एग्जाम में अभी गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी कर दी, जैसे अभी सीए के एग्जाम चल रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उसमें भी सबसे पहले जब आप पेपर देते हैं बच्चों को तो 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट दे हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर। उस टाइम हम आंसर बुक भी नहीं देते, 15 मिनट बाद ही उनको आंसर बुक देते हैं। So the question number 6, question 6 को एक बार ध्यान से पढ़े। The curved surface area of a right circular cylinder is, curved surface area of right circular cylinder, ये देखिए ये कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दीजिए फटाफट। दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे मैं ये जैसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब देखो ये तो टॉप सर्कुलर पार्ट है, ये बॉटम सर्कुलर पार्ट है, दिख रहा है आपको। और ये वाला जो पोर्शन है, जैसे अगर आपने रोलर वाला क्वेश्चन किया, आपने रोलर को जब रोल करते हैं तो रोलर का जो पार्ट जमीन को टच करता है या ग्राउंड को टच करता, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। तो ये इसका कर्व्ड सरफेस है, दिस वी हैव नॉट फाइंड आउट। सो क्योंकि ये बॉटम का सर्कुलर है, ये टॉप का कर्व्ड सरफेस केवल दिस वाला।
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस रोलर का जो कार्ड सरफेस होगा, कार्ड सरफेस कैसा होगा, देखो ये और ये जब ये रोल करेगा ऐसे, जैसे मैं कहूं कि ये इसका वन एंड है और ये दूसरा एंड है, माना कि ये रोलर ऐसे रोल हो रहा है, तो रोल वाला पोर्शन कौन सा, ऐसे ये घूमेगा, तो जो जमीन को टच कर रहा है दैट पार्ट इज नोन एज कार्ड सरफेस। और वो दे रखा है अपने को कि द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सर्कल। तो क्या दिया अपना क्वेश्चन नंबर 6, द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दे रखा, 4.4 मीटर स्क्वायर। If the radius of the base of cylinder is 0.7 मीटर, देखो इस सिलेंडर के बेस की रेडियस, देखो ये रेडियस होगी क्योंकि ये पूरा तो डायमीटर होगा, तो ये वाली रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 0.7 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट, तब इस सिलेंडर की जो हाइट है, लेट अस सपोज दिस इज द हाइट है, तो ये हाइट कितनी है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सेकंड क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज आर कितना दे रखा है 0.7 मीटर, एंड लेट द हाइट बी h मीटर। देन क्या जानते हैं अपन, वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट द कार्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का कार्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कार्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, कार्ड सरफेस एरिया राइट सिलेंडर 4.4 मीटर स्क्वायर। तो 4.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगी आपकी 0.7 इंटू हाइट मीटर स्क्वायर। ओके, आप देखो ये मीटर स्क्वायर था, है ना, एच तो अपना इसमें क्योंकि मीटर स्क्वायर में केवल एक यूनिट दे रखी यहाँ वाला, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये निकालना, एच अब निकालना है अपने को। तो फाइनली अपन क्या करेंगे, जैसे ही इसको हटाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको पॉइंट हटाइए यहाँ से, कैलकुलेशन नीचे 0 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 0, देखिए इस 10 से 10 कट गया, तो 44 इंटू क्या हो जाएगा 44/2 इंटू 22 इज इक्वल टू एच। देखो ये जो है पूरा इधर लेफ्ट में आएगा, तो 44 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 2 से 44 22, 22 से 22 कट गया, मतलब 1 बचा, तो इम्प्लाई दैट हाइट कितना हुआ 1 मीटर। तो ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका कार्ड सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर है और रेडियस 0.7 मीटर है, उसकी हाइट कितनी आएगी 1 मीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज, तो आंसर क्या हुआ, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर, दैट्स योर आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन, Question number 7 is the inner diameter of a circular wheel is 3.5 meter and its depth is 10 meter. Find the inner curved surface area. देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेली लाइफ में भी आप देखते हैं। एक
सर्कुलर वेल दे रखा है। जैसे आप कभी किसी किसान के यहाँ फार्म हाउस पे गए हो तो जो इरिगेशन के लिए जो फार्मर अपने खेत पर कुआं खोदता है जिससे वो इरिगेशन के लिए वाटर लेता है। गाँव में पहले पनगट हुआ करता था, जहाँ पनगट से औरतें पानी लाती थी, वो भी एक कुएं का एग्जाम्पल है। पनगट बोलते थे यहाँ पर, जहाँ पूरे गांव वाले पानी भरते थे। तो अब बहुत से बच्चे समझते नहीं कुआं क्या होता है, क्योंकि अभी मॉडर्न जमाने में आप लोग इतना ज्यादा बाहर नहीं निकलते, जानते नहीं है। तो कहाँ आपके आसपास के एरिया में कहीं पे भी देख सकते हैं। लेट अस सपोज ये कोई एक कुआं है किसी फार्मर के फार्म हाउस पे, ये गांव में पानी का जो पनगट होता है वहां देख सकते हैं। इस प्रकार जमीन में जो एक सर्कुलर फॉर्म में एक कुआं खोदा जाता है पानी पीने के लिए या इरिगेशन के लिए। तो ये एक कुआं है। इसमें क्या दे रखा है कि ये जो सर्कुलर वेल है इसका डायमीटर, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक की जो टोटल विड्थ है वो कितनी है, दैट इज ये कहलाता है इसका डायमीटर। तो ये डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 3.5 मीटर। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ वेल कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 3.5 मीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ वेल, उस कुएं की रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर 3.5 अपॉन 2 मीटर, रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। देन सेकंड है इसकी डेप्थ। डेप्थ का मतलब यहाँ उसके जो उसको मुंडेर बोलते हैं, टॉप से लेकर के बॉटम तक की टोटल डेप्थ कितनी है, ये जो हाइट है इसको अपन बॉटम से टॉप तक मानेंगे तो हाइट बोलेंगे, वैसे डेप्थ बोलते हैं, लिखते हैं हाइट। तो h बराबर कितना है, 10 मीटर। तो सेकंड क्या हुआ, डेप्थ ऑफ वेल, वो हाइट ही लिखी जाएगी। तो ये कितनी दे रखी है आपको, 10 मीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड इट्स इनर डायमीटर, सॉरी इनर कर्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले द इनर कर्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। जो कर्ड सरफेस होगा, अंदर का जो सर्कुलर पार्ट है, जैसे लेट अस सपोज किसी किसान ने अपने फार्म हाउस पर इस प्रकार का एक वेल डिग किया है, और जो साइड में जो मिट्टी होती है, क्योंकि पानी के साथ बारिश में साइड का पानी भी अंदर जाता है, तो ये कुआं क्या हो सकता है, डेमोलाइज हो सकता है। इसलिए इसको जैसे अंदर लेट अस सपोज सीमेंटेड कर रहा है, अंदर वाले पोर्शन को, जहां से इसका डिगिंग स्टार्ट हुआ वहां से लेकर स्टोन तक के एरिया को। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो इनर, तो देखो यहां से यहां तक का जो टोटल अंदर का जो सर्कुलर पार्ट होगा उसको केवल समझाने के लिए, लेट अस सपोज जैसे ऐसा कोई टैंक है आपका सर्कुलर वेल टाइप का, और उसको जैसे अंदर से कलर करना है तो कितना कलर करेंगे, उसके कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच के बराबर। तो ये हो गया। देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपकी 3.5 अपॉन 2 इंटू डेप्थ है आपका 10, दिस इज द मीटर स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करें। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा, इससे ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 7 से ये 35, 5 बार कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 110 मीटर स्क्वायर, दैट इज द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल हो गया। दूसरा पार्ट क्या सोल्व करना है इसमें कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मैं बता रहा था कि कुएं के अंदर अगर अपने को जैसे प्लास्टर करना है, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग, 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग की कॉस्ट कितनी है, ₹40 है। तो टोटल कॉस्ट, सो कॉस्ट ऑफ
110 meter square plastering will be equals to rupees 40 into 110. So 11 4 जा 44, तो ये हो जाएगा आपका 4400 rupees. So cost of plastering will be